bank is going to, when it goes to the borrower, is going to make the calculation and say, how easy is it going to get my money back? And in the full interests of my investors, I may accept the one-time settlement because it's easier to do that than to go through the system to get it back. So, point I was making is we need to improve the system. Right. And then there's a third class, which I haven't talked about, even the total fraud. And those, the penals, the legal system should go after much more vigorously. And for that, we have to relook at how we deal with these economic frauds. Do we have impediments in the way of doing it? Can we move faster? Can we, think about special cells in the CBI or in the finance ministry, or should we make the the frauds, serious frauds investigation office move faster in these places? Because if you spend a lot of time before you investigate, trail goes cold and you can't bring the criminals to justice. So I would say that these are important places because, as you correctly point out, the small fellow feels discriminated against. जब मैं क्रेडिट कार्ड लोन repay नहीं कर सकता हूँ, he doesn't get a new loan also. They come and make halla outside my house and they shame me. Now, I'm not saying he shouldn't pay. No, obviously, yes. He should pay, but it should be a level playing field, that the big fellow also should pay. True. That's a very fair point. Now, sir, coming back to the other issues. एक तो ये जो पूरा मोमेंटम हमने इंडियन इक्विटी मार्केट में देखा है, एंड वी आर द टॉक ऑफ द टाउन करंटली ग्लोबली अगर आप देखें. डू यू फील वरिड? 2007 में जब हमारी बात होती थी आरबीआई से, तो थोड़ा कंसर्न होता था अबाउट हॉट मनी एंड ऑल दैट, बट अब इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, मार्केट की एपेटाइट काफ़ी बड़ी है. व्हाट इज़ योर टेक? जब इन्वेस्टर्स हमें नफरत करते हैं तो वी हैव टू we want their love. जब ज़्यादा प्यार करते हैं तब भी we are not very happy. There's a happy medium, right? But at this point I'm not too worried. I think every flows is that they typically are sticky. जो लोग analyze करते हैं before they buy equity, वो generally long term investors होते हैं. तो they're not happy leaving in a hurry. Also, they typically, if there's problems, they lose a lot of money. और वो ये सोचते हैं कि okay, maybe if we stay in, this will get repriced up. So why exit at a loss? The quickest to leave are the ones that are in short-term debt. Because they leave without taking a big loss, except maybe some exchange losses. And if they are hedged, then there are no exchange losses also. True. So that is the hottest money. That is basically betting on small differentials that comes in and what my colleague Mr. Khan calls investment tourists, वो जो एक दो दिन के लिए आते हैं और फिर जब environment थोड़ा बदलती है तो they leave. Right. Quick two questions. One, obviously, since we are talking about markets, globally इस समय इकोनॉमी पर आपका टेक क्या है? Because we have been hearing different voices. And like there is a theory now that we may see QE4 in US. In Europe का जो sluggishness है, that's in front of us. जापान ने जो quantitative easing शुरू किया है, that's there. And then the Chinese concern. तो आपका crystal ball क्या कहना है? वर्ल्ड इकोनॉमी तो काफ़ी वीक है. यूनाइटेड स्टेट्स में भी 2 क्वार्टर्स 4% ग्रोथ हुए हैं, लेकिन उससे पहले 0% ग्रोथ था. तो यू हैव टू बी अ लिटिल वरिड दैट वर्ल्ड इज़ वेरी वीक. जापान में ये जो उन्होंने टैक्स बढ़ाया, कंजम्पशन टैक्स, उसके कारण 2 क्वार्टर्स काफ़ी बुरी तरह से they've been hit. So I think and यूरो एरिया में तो ग्रोथ 0 है अभी, तो देखना पड़ेगा. मेरे ख्याल में ये जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के, वो स्टिमुलस के कारण नहीं है. वो इसलिए हैं कि क्योंकि देयर आर डीप प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग. लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ which has been there for some time. ये जो aging populations, they're growing older and older. Many people leaving the workforce.
पार्टिसिपेशन रेट्स, ये जो औरत वर्कफोर्स में आ रहे थे, वो अभी नहीं आ रहे हैं, बिकॉज दे एनीबडी हु वांटेड टू वर्क हैज ऑलरेडी कम इन, सो दैट पार्टिसिपेशन रेट इज ऑल्सो स्टेबल. सो फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस ग्रोथ इज नॉट स्ट्रॉन्ग इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज, एंड they can't, it would be a wrong idea to re-energize that growth through the crazy lending that went on before the recession. And you can see some signs of that coming back. So I think we are in a much better situation, which is why I think we will stand out relative to the world, because there is so much scope for domestic growth. यहाँ पे 10-15 साल के लिए मेरे ख्याल में 8% से ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है if we do the right thing. And that can be achieved 2016-17 तक 8%. मेरे ख्याल में यहाँ से 1% ऐड कर दो हर साल के लिए, तो इस साल 5.5%, अगले साल 6.5%, उसके बाद 7, 7.5, उसके बाद हमें we have to see how the reforms play out. Because to keep it at 7.5, 8, we need continuous process of clearing the way for growth. ये जो land acquisition reforms, labor reforms, जो government सोच रही है, all these things will have to play out. But I think if we have enough time to do it, and as they are done and they kick in, growth will be strong. Alright, so बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड थैंक यू सो मच. उम्मीद करते हैं कि जो आपका मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो हमारा मकसद है फाइनेंशियल लिटरेसी, वो इसी तरह कॉम्प्लीमेंट करते रहें. थैंक यू सो मच. प्रायोजक लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल्स. सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ. सर, आपके होम लोन के लिए भी टाइम लगेगा. एक्सक्यूज मी, माय सिविल ट्रांसयूनियन स्कोर इज 750. आजकल आगे बढ़ने के लिए नाम नहीं नंबर जरूरी है. आपको भी लोन चाहिए तो लॉग ऑन टू www.civil.com and check your Civil TransUnion score to know your eligibility. Get your Civil TransUnion score. नमस्कार, गुड इवनिंग. आपका अपना पर्सनल फाइनेंस शो लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं. चर्चा करेंगे आज एक खास टॉपिक पर, क्रेडिट स्कोर के बारे में, और इसी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं गौरव वाधवानी, जो कि को फाउंडर हैं क्रेडिट सुधार के. गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में. थैंक यू. एक बार नजर डालते हैं शो में आज क्या खास रहेगा. जैसा कि मैंने कहा, क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करेंगे, यानी आपको बताएंगे कैसे आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री सुधार सकते हैं और क्रेडिट हेल्दी बन सकते हैं. इसके अलावा पार्ट पेमेंट के क्या फायदे होते हैं वो भी जानेंगे गौरव से, और पर्सनल लोन को लेकर भी एक सवाल आया है, उसे भी हम शामिल करेंगे. सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले गौरव, क्रेडिट स्कोर की मैंने बात की. आज के सिनेरियो में जब लोन एक ऐसी चीज है जो आप चाहें या ना चाहें, एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा बन गया है लोन, ऐसे में क्रेडिट स्कोर की अपनी इंपॉर्टेंस है. क्रेडिट स्कोर के बारे में बताएं, और साथ ही दर्शकों को यह भी बताएं कि कैसे जान सकते हैं वो अपना सिबिल स्कोर. क्रेडिट स्कोर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. आप कहीं भी किसी भी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना लोन लेने जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे. वो ये चेक करेंगे कि आपके पुराना आपने कैसे बिहेव किया हुआ है. पुराने आपने कभी लोन लिया होगा, क्रेडिट कार्ड लिया होगा. आप किसी को भी जब पैसा देना चाहते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि उसने पुराने लोन्स ठीक से रीपे किए हैं कि नहीं, वो ठीक से पेमेंट करता है कि नहीं, टाइम से पेमेंट करता है कि नहीं. तो ये सब जानकारी जो है, जैसे आप स्कूल में जब आप 10 क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको एक स्कोर मिलता है, एक टीचर एक स्कोर देती है और उसके बेसिस पे आपको बोला जाता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट है या खराब स्टूडेंट है. वैसे ही क्रेडिट रिपोर्ट में जो है अलग अलग ये पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर आपको एक स्कोर मिलता है. तो जिसका स्कोर एक 740 750 के ऊपर होता है वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है. और क्रेडिट स्कोर की इंपॉर्टेंस हमको पता है हर जगह पर है. लोन्स में आप अगर अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा. आपको अगर आपका 750 के आसपास क्रेडिट स्कोर है तो आपको मे बी होम लोन, अगर आप 1 करोड़ का होम लोन लेने जा रहे हैं तो आपको 10% पे भी मिल सकता है. और आपका खराब क्रेडिट स्कोर है तो या तो आपको लोन नहीं मिलेगा या फिर आपको 11% पे 12% पे मिलेगा. 1% ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स 1 करोड़ के लोन पे का मतलब होता है कि आप रफली 20 लाख एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेंगे. So that is the importance of the credit score.
गौरव, इनफैक्ट आपने सिबिल का एक रेंज मेंशन की, यू मेंशन्ड अबाउट कि 750 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो अच्छा माना जाएगा। मिनिमम रेंज क्या है, एज इन ये रेंज कहां से शुरू होती है, और एग्जैक्टली इसके अगर कॉमन मैन के लिए जिसने शायद कभी सिबिल स्कोर चेक ना किया हो, लेकिन क्योंकि हमने पहली बार देखा कि सिबिल का एडवर्टीजमेंट्स भी आने लगे हैं टेलीविजन पर, अवेयरनेस लेवल्स की हम बात करें, इंडिया में कितने अवेयरनेस लेवल्स हैं, अभी भी कितने लोग एक्चुअली जानने की कोशिश करते हैं उनका सिबिल स्कोर क्या है? आपके क्वेश्चंस का मैं दो पार्ट में आंसर दूंगा। पहला ये कि जो रेंज होती है जिसमें ये स्कोर होता है वो होता है 300 to 900। 300 इज योर बेस स्कोर और 900 तक वो जाता है। तो 730 740 के ऊपर जिनका स्कोर है वो अच्छा माना जाता है, उसके नीचे थोड़ा एवरेज हो जाता है, और 600 के नीचे तो काफी बैंक्स आपको कुछ लोन देंगे ही नहीं। दूसरा, अवेयरनेस, जहां तक आपने मेरे से पूछा, अवेयरनेस तो बहुत ही खराब है इंडिया में। अगर आप बाहर के देशों में जाएं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जाएं, यूके में जाएं, तो वहां हर किसी को अपना क्रेडिट स्कोर पता होता है। बट इंडिया में हमने एक सर्वे किया था जिसमें यह देखा कि खाली 3% लोगों को अपना स्कोर पता था। अगर आप किसी भी ऑफिस में जाएं जहां पे आपको प्रॉपर एजुकेटेड लोग मिलेंगे, वहां पे आप जाके सबसे पूछें, एक एक आदमी से पूछें कि आपको आपका स्कोर पता है। लोगों को यही नहीं पता होता कि कोई स्कोर भी होता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ अवेयरनेस यू हैव इन इंडिया। गौरव, इनफैक्ट अगर हम प्रोसेस की बात करें, जी गौरव, वाइल इंटरप्ट यू इन बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी और चाहिए, क्योंकि उन दर्शकों के लिए भी जो शायद सिविल स्कोर चेक करना चाहते हैं पर उन्हें एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि कौन सी वेबसाइट पे जाकर उन्हें फॉर्म भरना है या फिर कहाँ कितने का डीडी लगेगा, जो भी इसके बेसिक्स है वो हम आपसे समझेंगे। लेकिन एक बात और यहाँ पर आप समझाएं कि बैंक्स कैसे ये जो भी डेटाबेस उनका होता है कैसे शेयर करते हैं, क्या एक मंथली एक्सरसाइज है कि बैंक सिबिल को इंफॉर्मेशन भेजते हैं, और किन कारणों से सिबिल स्कोर पर इफेक्ट पड़ता है? ये एक मंथली एक्सरसाइज है जिसमें क्या होता है कि हर मंथ एंड पे जितने भी लोन्स आप देते हो कस्टमर्स को, और जितने भी उस लोन में जो भी एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि पैसा वापस आया या नहीं आया, या कोई चेक बाउंस हुआ, या कोई भी एक्टिविटी हुई, वो हर मंथ जो है वो बैंक सिबिल को, और इनफैक्ट 3 ब्यूरोज हैं इंडिया में, सिबिल, इक्विफैक्स एंड एक्सपीरियन, वो तीनों ब्यूरोज को रिपोर्ट करना होता है। हर महीने उनको अपडेट करना होता है कि कस्टमर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसने ठीक से पेमेंट भरा है कि नहीं भरा है, या उसने नया लोन लिया है कि नहीं लिया है, कितने का लोन लिया है, ये सब चीजें जो हैं उसको रिपोर्ट करनी होती हैं। और मान लीजिए अगर आपने किसी बैंक के पास जाके इवन इंक्वायरी करी है कि मुझे लोन चाहिए, वेदर आपको लोन मिला या नहीं मिला, वो इंक्वायरी भी रिपोर्ट होती है। तो सब कुछ रिपोर्ट हो जाता है जब आप एक ब्यूरो रिपोर्ट पे चेक करते हो। ये ऑटोमेटिक, इनफैक्ट जब लोन जो नया होता है वो तो एकदम ही अपडेट हो जाता है, क्योंकि बैंक जो है बिना ब्यूरो रिपोर्ट निकाले लोन देता ही नहीं है। तो जैसे ही वो इंक्वायरी करता है, उनको वहां पे पता लग जाता है कि ये कस्टमर जो है इस बैंक में जाके ये लोन लेने की कोशिश कर रहा है। और जो बाकी डिटेल्स हैं जैसे कि पेमेंट हिस्ट्री, कितने का लोन गया, वो सब बैंक जो है हर महीने अपडेट करता है। गौरव, इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई पहली बार लोन लेने की सोच रहा है, यानी कि एक फर्स्ट टाइमर है जिसने शायद पर्सनल लोन या होम लोन किसी भी तरह के लोन के लिए अप्लाई किया है, क्या वो शख्स भी अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकता है? भले ही उसके पास, अगर हिस्ट्री की बात करें, कोई क्रेडिट कार्ड ना रहा हो या इससे पहले कोई लोन नहीं लिया हो, इन दैट केस क्या रिफ्लेक्ट करेगा सिबिल में, और क्या उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी? देखिए, अगर आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, कभी भी कोई लोन नहीं लिया है, तो सिबिल के पास आपका कोई हिस्ट्री नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी अगर कोई जाएगा तो उसका वहां पे जो रिपोर्ट आएगा वो ब्लैंक रिपोर्ट आएगा और वो नो स्कोर दिखाएगा। तो उसमें जब आपके पास कुछ पास्ट हिस्ट्री नहीं है तो आप क्या रिपोर्ट करोगे? ऐसे लोग भी लोन ले सकते हैं, बट ऐसे लोगों को लोन लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि बैंक हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको लोन देता है कि आपने ठीक से पे किया है कि नहीं। अब किसी के बारे में आपको कुछ पता ही ना हो तो आप उसको कैसे लोन दोगे? तो ये दिक्कत बैंक्स फेस करती हैं। तो फिर ज्यादातर क्या होता है कि या तो मान लीजिए आपकी उम्र 25-26 साल है और वहां पे आप इस बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है, तो बेसिस दैट सेविंग्स अकाउंट आपको लोन मिल जाता है। लेकिन यही अगर आपकी उम्र 35-36 साल है और आप 35-36 साल की उम्र में एक लोन लेना चाह रहे हो और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप बैंक के पास जाते हो, तो बैंक यही सोचेगा कि 35-36 साल की उम्र तक इस आदमी के पास क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं इसने अपना पैन नंबर हमारे यहाँ आजकल यूनिक आइडेंटिफायर है, पैन नंबर बदल के और कोई नया लोन तो नहीं लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने मे बी पुराने लोन में डिफॉल्ट किया होगा। तो इसीलिए बैंक फिर उसको थोड़ा शक की नजर से देखते हैं। फिर आपको थोड़ा सिक्योरिटी देना पड़ेगा, मे बी आपको एक सिक्योर्ड लोन लेना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट कुछ प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, या आपका कोई सेविंग्स अकाउंट हो उसके अगेंस्ट वो बोले ठीक है नहीं हमारा कस्टमर है। तो बट ऐसे लोगों को दिक्कत होता है अगर आपका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है।
राइट तो यानी कि लोन लेने अगर आप जा रहे हैं तो अगर क्रेडिट कार्ड का या फिर कोई भी आपकी हिस्ट्री क्लीन है तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। एक और सवाल मेरे मन में गौरव आ रहा है इसी सिविल स्कोर को लेकर। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर आपने बताया कि कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, ऐसे भी थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर कोई बहुत पुराना मामला हो कब तक रिफ्लेक्ट करता है सिविल में? और अगर एक बार स्कोर खराब हो गया, जैसे आपने बताया था 300 से कुछ 900 पॉइंट्स की रेंज में ये स्कोर मिलता है, इन दैट केस अगर किसी को इंप्रूव करना हो अपना खराब स्कोर तो फिर क्या तरीका है? देखिए, अगर किसी को अपना स्कोर इंप्रूव करना है, ये पहले तो ये समझिए कि ये थोड़ा सा ना एक टेक्निकल रिपोर्ट होता है, हर किसी के समझ में नहीं आता है। अगर एक आम कस्टमर जाके इसको एक रिपोर्ट भी ले ले तो उसको समझ में नहीं आएगा कि उसमें क्या लिखा है। उसमें 0, 1, NH ऐसे सब डिटेल्स होते हैं। तो आपको अगर किसी को अपना स्कोर अगर अच्छा करना है तो आपको किसी क्रेडिट कंसल्टेंट के पास, क्रेडिट एडवाइजर के पास जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपकी रिपोर्ट में प्रॉब्लम क्या है। एक और दिक्कत जो आती है वो है कि क्योंकि देखिए इंडिया में हजारों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं ना, हर कोई जो है वो ब्यूरो को अपना रिपोर्ट, अपना फाइल भेज देता है। ब्यूरो एक एल्गोरिथम रन करता है जिसके बेसिस पे वो सब कंबाइन करता है। तो आज अगर गौरव का रिपोर्ट है तो गौरव का रिपोर्ट जो होगा वो, मान लीजिए मेरे पास 10 क्रेडिट कार्ड और लोन और ये हैं, तो 10 अलग अलग बैंक का एक एल्गोरिथम मेरे डेट ऑफ बर्थ, मेरे पैन नंबर, मेरा नेम, एड्रेस, एज सबके उसके ऊपर से रन किया जाएगा। अब ऐसे में भाई कई सारे एरर हो जाते हैं। किसी का, अब मेरा नाम मान लीजिए कोई गौरव डब्लू होगा या वाधवानी जी होगा, कुछ भी हो सकता है, तो उसका अगर अकाउंट मेरे में अटैच हो जाए गलती से तो वो भी मेरे क्रेडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो दिस इज, ये इस तरीके से ये एक रिपोर्ट बनाई जाती है क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से ये डेटा आता है। गौरव आपसे समझेंगे और भी कि क्या तरीके हैं, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है स्कोर को, और एग्जैक्टली अगर खराब ही ना हो, यानी कि शुरुआत से कैसे ध्यान रखें कि आपका स्कोर खराब ना हो, ये भी आपसे समझेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अपने दर्शकों को बताएं कि अपने सवाल या सुझाव आप हमें मेल पर भेज सकते हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com पे, या फिर लोन से जुड़ा कोई सवाल है तो कर्ज लिखकर स्पेस देकर अपना सवाल 57575 पर भेज सकते हैं। कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या यादव की सरकार बनेगी। एक शब्द सुनकर खुशियां बरसे। एक यस आपकी जिंदगी बदल देता है। हम समझते हैं यस का महत्व। यस बैंक, से यस टू ग्रोथ। ये शायद सोच रहा है हमें ठंड क्यों नहीं लग रही। इससे क्या पता, हमारे पास है कोठारी हिमावली विंटरवेयर। कोठारी हिमावली विंटरवेयर, अंदर से गरम, बाहर से नरम। अब तो मैं कार्ड लेकर रहूंगा। और दिवाली गई और ऑफर्स भी। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे यार, दिवाली गई नहीं, वापस आ गई है। आ गया फोर्ड दिवाली रिटर्न्स ऑफर 3 से 7 दिसंबर तक। बुक करिए अपनी फोर्ड स्पेशल प्राइस पर और पाइए 5 करोड़ तक के अशोर्ड गिफ्ट भी। जल्दी करें। 100 क्विंटल फैब्रिक में यूं खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे इस काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए। indiamart.com, काम यहीं बनता है। Monte Carlo Fashions Limited now offers a public issue of 5.4 million equity shares of face value of ₹10 each for cash at a premium. The Monte Carlo public issue, offered in the price band of ₹630 to ₹645 per equity share, opens 3rd December, closes 5th December 2014. For details and risk factors, refer to Red Herring Prospectus. अर्जुन, खड़े हो, चलो दीवार पर निबंध सुनाओ। मैम, दीवार मैम 2 प्रकार की होती है, अच्छी दीवार और मैम बुरी दीवार। जरा सही से एक्सप्लेन करो। मैम, मेरा एक फ्रेंड है इकबाल, जो मैम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन मैम अब वो मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलता। ताऊ जी कहते हैं कि उसके मेरे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है, जो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तोड़ देनी चाहिए भेदभाव की दीवारें।
और मजबूत दीवारों के लिए सिर्फ अंबुजा सीमेंट। Now trade online at just ₹20 and trade unlimited at ₹1950 per month. Sign up with TradeWallah.com. वाह, क्या तरक्की कर रहा है हमारा देश। सारी दुनिया आज हमारा नाम ले रही है। दुनिया का बड़े से बड़ा काम आज हमारा है, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के बीच हम कुछ छोटी अहम बातें भूल जाते हैं। क्या है? अंकल, what are you doing? क्या आप भी इन लोगों की तरह शर्म का ताज पहनना पसंद करेंगे? आइए अपने देश को और उसके दामन को साफ रखें, खुद के लिए और अपने मेहमानों के लिए। जय हिंद। Monte Carlo Fashions Limited now offers a public issue of 5.4 million equity shares of face value of ₹10 each for cash at a premium. The Monte Carlo public issue, offered in the price band of ₹630 to ₹645 per equity share, opens 3rd December, closes 5th December 2014. For details and risk factors, refer to Red Herring Prospectus. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु और आज बात आपके क्रेडिट स्कोर की हो रही है, साथ ही लोन से जुड़े हुए सवालों को भी हम शामिल कर रहे हैं। गौरव वाधवानी हमारे साथ हैं, को फाउंडर क्रेडिट सुधार। गौरव, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन अगर से क्विकली रैप अप करना हो इस डिस्कशन को, ये बताएं क्विकली कुछ टिप्स ऐसे कि कैसे क्रेडिट स्कोर अपना सुधारा जा सकता है। क्रेडिट स्कोर जो है आपको अगर अच्छा रखना है, सुधारने से पहले मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको अच्छा रखना है तो आपको पेमेंट टाइम से करना चाहिए अपने लोन्स और अपने क्रेडिट कार्ड पे। आप अगर बहुत बार आपको जाके किसी बैंक में इंक्वायरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोगों को लगेगा और या बैंक्स को लगेगा बहुत डेस्परेट हो कार्ड्स और लोन्स लेने के लिए। आप अपना इंक्वायरी कम रखिए, अपना क्रेडिट लिमिट जो है वो क्रेडिट कार्ड जो है सेंसिबली यूज करिए, ओवर लिमिट मत जाइए। 2-3 क्रेडिट कार्ड रखिए। ये जरूरी नहीं है कि एक ही कार्ड को यूज करके उसको हर महीने लिमिट पे पहुंचाया जाए और उसको पे किया जाए। 30%, 40%, 50% तक उसको आप लेके जाइए। और यही कुछ तरीके हैं। और अपना आपको क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करिए, क्योंकि कभी भी ये हो सकता है कि किसी और का अकाउंट आपके रिपोर्ट में जुड़ गया हो और उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाए। आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कब पता चलेगा? जब आप लोन लेने जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको रेगुलरली अपना, जैसे आप हॉस्पिटल जाके अपना टेस्ट कराते हैं, अपने ब्लड टेस्ट करा के चेक करते हैं जबकि आपको कोई बीमारी नहीं होती है कि आप सब ठीक है कि नहीं, वैसे ही आपको अपना रिपोर्ट देखना चाहिए। इनफैक्ट गौरव, अवेयरनेस लाने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं? इनफैक्ट आप क्रेडिट सुधार से जुड़े हुए हैं, क्या किस तरह के कैंप्स भी आप करते हैं लोगों में इसकी अवेयरनेस पहुंचाने के लिए? क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए भी हमारी कोशिश है कि हम लोगों को बता सकें कि अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, अपना रिपोर्ट, आप क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करें। और ऑनलाइन भी तरीके हैं कि इसको मंगाया जा सकता है। इससे पहले कि हम अगला सवाल लें, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ एग्जैक्टली क्या तरीके हैं कि इसके बारे में और पता चल सके। आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज? गौरव, व्हाट आर द वेज जिससे कि अवेयरनेस थोड़ा सा सभी लोग अवेयर हो सके? हालांकि टेलीविजन के माध्यम से या फिर अखबार के माध्यम से या जितने भी और मीडियाज हो सकते हैं, उनके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश होती है। लेकिन फिर भी एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि आप खुद क्रेडिट सुधार से जुड़े हुए हैं, क्या एक टिप आप देंगे कि कैसे इसके बारे में लोग जागरूक रहें? देखिए, हम अपनी तरफ से जो कोशिश करते हैं वो हम करते ही हैं। हमने क्रेडिट कैंप्स किए हैं कई जगह जाके, हम कॉर्पोरेट कैंप्स भी करते हैं। वहाँ पे जाके लोगों को बताते हैं क्रेडिट स्कोर का क्या इंपॉर्टेंस है, बट हम बहुत एक लिमिटेड वे में कर सकते हैं। हमें चाहिए कि रेगुलेटर हमारा साथ दे, बैंक्स इसमें साथ दें, बैंक्स अपने सब कस्टमर्स को बताएं, इन्फॉर्म करें कि क्रेडिट हेल्दी रहने के क्या फायदे हैं। RBI भी एक कुछ रन करे प्रोग्राम जिसमें कि लोगों को पता चले। तो एक लिमिटेड वे में हम कर रहे हैं, बट आई थिंक अगर उतना अवेयरनेस बढ़ाना है जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज में है, तो इसमें रेगुलेटर और बैंक सबको साथ में आना पड़ेगा और उन्हें ये चीज करनी पड़ेगी। चलिए गौरव, शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। और आपका नेम से गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं पुणे से। नमस्कार गौरव, आप गौरव से सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर, दिस इज गौरव हियर
मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है होम लोन से. आई हैव ए होम लोन ऑफ 30 लाख रुपीज फॉर ए टेन्योर ऑफ 20 years with a fixed interest rate of 10.75%. Okay. My question is making a part prepayment, say suppose for 2 lakh rupees of a home loan with a name of closing the home loan soon. Okay. Is this choosing this option is more beneficial, or investing the same amount to somewhere in the market like equity, mutual fund, or fixed deposit will be more beneficial? So I want to compare between the two options, making a part prepayment of the home loan or doing the investment. Okay. और ये जो पार्ट पेमेंट गौरव आप करेंगे, ये आपके सारे एक्सपेंसेस को हटाने के बाद आप करने की सोच रहे हैं? जी. ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप सोच रहे हैं कर्ज थोड़ा सा कम हो जाए. लेकिन क्विकली गौरव, इन्होंने दो चीजें पूछी कि ये पैसा मैं कहीं निवेश कर दूं या फिर पहले लोन चुकाऊं. देखिए, इसके लिए हमें दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो. देखिए, एफडी का आपने मुझे ये बताया कि आपका जो लोन है वो 10.75% पे चल रहा है. आज अगर आप मार्केट में देखें तो कोई भी आपको 9%, 8.5% से ऊपर एफडी में कोई इंटरेस्ट नहीं देगा. तो अगर आप ये कंपेयर कर रहे हो कि आप ये पैसा एफडी में रखो या फिर उसको लोन का प्रीपेमेंट करो, तो मेरे ख्याल में आपको लोन का प्रीपेमेंट कर देना चाहिए. बट लेकिन एक और ऑप्शन मैं आपको दूंगा. आपका जो ये होम लोन चल रहा है, आपको ना इसको एक प्रोडक्ट आता है जो करंट अकाउंट लिंक्ड होम लोन होता है, जिसे कुछ बैंक्स होम सेवर भी बोलते हैं. उसमें क्या होता है, जब भी आपके पास एक्सेस पैसा हो आप उस अकाउंट में डाल सकते हैं और आप वो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं जब आपकी मर्जी हो. तो मान लीजिए आपका 30 लाख का, आपने जैसे बोला आपका लोन है, आपके पास 2 लाख है, आप अगर वो करंट अकाउंट में डाल देते हैं तो आपको इंटरेस्ट खाली 28 लाख पे पड़ेगा. कभी अगर आगे जाके आपको जरूरत पड़े पैसे की तो आप ये विड्रॉ कर सकते हैं. तो ये एक आपके लिए अच्छा सोल्यूशन है. और बाकी अगर आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो ये कंप्लीटली आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर या रिस्क प्रोफाइल, रिस्क टेकिंग एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कितना स्पेयर है ये आपके लिए पैसा, और आप कहां उसको डाल रहे हो. बट मेरा जो आपको सुझाव होगा वो यही होगा कि आप एक होम सेवर अकाउंट खोलो इसकी जगह. आजकल फोक्लोजर तो हो जाता है, कोई पेनल्टी है नहीं, तो आप एक ऐसे इसमें अकाउंट, होम सेवर अकाउंट ले लो जिसमें कि आप अपना पैसा पार्क करके रख सको और जरूरत पे आप निकाल भी सको. जी. एक और सवाल है जो ईमेल के जरिए आया है, सोपान जी ने भेजा है हैदराबाद से. ये पर्सनल लोन के बारे में जानना चाह रहे हैं गौरव. इनका प्रोफाइल मैं आपको बता दूं, 39 इनकी उम्र है और लगभग 16,500 रुपए ये हर महीने कमाते हैं. आपसे इनका सवाल ये है कि क्या इस सैलरी पे इनको 3 लाख का पर्सनल लोन मिल सकता है? देखिए, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो आजकल बैंक्स हैं उनका मिनिमम जो एंट्री क्राइटेरिया होता है ये होता है कि वो 20,000 रुपया नेट टेक होम हो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब दरवाजे इनके लिए बंद हो गए हैं. हम अगर इनकी स्पाउस वर्किंग स्पाउस हैं तो हम उनकी इनकम ऐड कर सकते हैं इनकी इनकम में और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. या फिर हम कोई ऐसे प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां पे सरोगेट्स देखे जाते हैं, मे बी LIC पॉलिसी के ऊपर लोन दिया जाता है, कई बैंक्स ऐसा भी करती हैं, तो वहां पे ये जाके लोन ले सकते हैं. बट 16,500 पे थोड़ा मुश्किल है अगर सिर्फ इनकी ही इनकम है लोन लेने के लिए. इंटरेस्ट रेट्स बता सकते हैं गौरव, लगभग कितने होंगे फिलहाल? आजकल जो अच्छे कस्टमर्स को जिनका की स्कोर अच्छा है उनको 14 से 14.5, इनफैक्ट 13.75% भी मिल रहा है पर्सनल लोन पे. और अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC के पास जाते हैं तो शायद 15, 16, 18, 20 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अगेन सी इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्रेडिट प्रोफाइल कैसा है. अगर आप बहुत अच्छे कस्टमर हो, बैंक्स आपके पीछे भागेंगे आपको लोन देने के लिए, और अगर आपका स्कोर खराब है तो आप बैंक के पीछे भागोगे. राइट गौरव, इनफैक्ट बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं पर्सनल लोन के लिए खास तौर पर, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही पर्सनल लोन आपको लेना चाहिए. शुक्रिया गौरव आज की इस तमाम चर्चा के लिए. और फिलहाल इतने ही सवाल हम ले पाएंगे, फिलहाल मनी गुरु को ही रोकते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें किस तरह सवाल भेजने हैं आपको. आप हमें ईमेल करें moneyguru@gmail.com पे, या फिर सीधे SMS करें कर्ज लिखकर अपना नाम अपने सवाल के साथ 57575 पर. फिलहाल हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार. दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या यादव की सरकार बनेगी. मनी गुरु के प्रायोजक हैं यस बैंक, से यस टू ग्रोथ और लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला.
Monte Carlo Fashions Limited now offers a public issue of 5.4 million equity shares of face value of rupees 10 each for cash at a premium. The Monte Carlo public issue, offered in the price band of rupees 630 to rupees 645 per equity share, opens 3rd December, closes 5th December 2014. For details and risk factors, refer to Red Herring Prospectus. ये तुम्हारे बर्थडे के लिए जो मैं भूल गया था, हैप्पी बर्थडे। और ये हमारे एनिवर्सरी के लिए जो भी मैं भूल गया था, बिलेटेड एनिवर्सरी। और ये किस लिए? ये शायद कुछ और भूल जाओ।